In this lecture, we will understand B tree. So B tree is also called multi-way search tree. It is different from binary search tree in some respects. Like in binary search tree, any node can have only one value, while in case of B tree, node can have multiple values. First binary search tree was created. The disadvantage of binary search tree was that in worst case the complexity was log n, that was equivalent to linear search. And it happens if suppose you want to create a binary search tree for the numbers which are in ascending orders like 5, 7, 9, 10, 11. So this binary search tree will grow only in one direction because larger values will go on the right hand side. So the complexity becomes order of log n. So to reduce this complexity, the concept of multi-way search tree as well as B tree was introduced, where in each node of B tree we can have multiple values, and this depends on the order of B tree. In case of binary search tree, order is fixed. In BST, order is fixed and it is n, and it is 2 only. While in case of B tree, order can be n, and n will be greater than 2, and number of values in the node will depend on the order, and that will be 1 less than the number n. That is, if n is equal to 5, that is order of B tree is 5, then any node can have maximum 4 values. If n is equal to 5, तो हम उस केस में मैक्सिमम किसी भी नोड में एक्सेप्ट द रूट कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 4 वैल्यूज आ सकती हैं. और इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में n देयर विल बी n पॉइंटर्स, n मीन्स 5, तो 5 पॉइंटर्स होंगे. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज नॉट देयर. एंड नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 1 लेस देन, like 2, 5, 9, 20. Also the values in any node will be in ascending order, that is increasing order, or in special case it may be in descending order. So now here are some points that we must understand first before creating any B tree. The creation is very simple. Although the deletion of any value from B tree may be somewhat difficult in comparison to creation, and it follows many rules. While creation is very simple, that we will understand with the help of example. But first of all, let us understand some points. Like here, first point says that all the nodes except the root are at least half full. Less space is wasted. This condition is maintained because space in the node should not be wasted. That is maximum. If the point says almost half values will be filled, that is if there are 4 values in the node, so any node except the root will have minimum 2 values, that is n by 2 values. Okay, so this point is clear. Now what is the use of B tree? This B tree is used in creating indexes in case of file organization. That is, indices are used for searching purpose. So the key value, that is in case of indices we know that there is a key value and one is the record pointer. Like in the back of books, रेफरेंस बुक्स, देर आर की वैल्यू, जैसे सर्च की वैल्यू टॉपिक का नाम दिया होगा और उसके साथ पेज नंबर दिया होगा. तो इंडिसेज से क्या होता है कि इंडिसेज का साइज एक तो छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से सर्चिंग आसान हो जाती है, इजी हो जाती है.
तो हालांकि हम बी ट्री को भी इंडेक्सिंग में बीएस ट्री को यानी बाइनरी सर्च ट्री को भी हम इंडिसेज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम बी ट्री यूज करते हैं, जिससे कि एक नोड के अंदर कई सारी की वैल्यूज आ जाएं और वो रिकॉर्ड पॉइंटर भी हम इसके साथ साथ ही मेंटेन करेंगे, जैसे की वैल्यू एंड रिकॉर्ड पॉइंटर, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेंटेन होगा। तो यहाँ तक की बात ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ए बैलेंस्ड ऑर्डर एन multi-way search tree in which each non-root node contains at least n-1/2 keys is called B tree। तो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था कि हर एक नोड ऑलमोस्ट हाफ फुल होना चाहिए। तो ये वही पॉइंट है कि अगर ऑर्डर मान लिया n = 5 है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो किसी नोड में होंगी तो 5 - 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 वैल्यूज होंगी। तो इस तरह से हम मिनिमम वैल्यूज को मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे इंटीजर डिवीजन है, ये बताया गया है। और यही सेम एग्जांपल है, इफ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 12 कंटेन्स एट लीस्ट 5 की वैल्यूज, यानी 12 अगर किसी बी ट्री का ऑर्डर है, ये ध्यान रहे कि हमेशा बी ट्री में ऑर्डर जरूर गिवन होगा। तो n = अगर 12 है तो इसका मतलब 12 - 1/2 यानी कि 5 की वैल्यूज मिनिमम होंगी। रूट नोड के अंदर केवल एक वैल्यू हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। रूट नोड के लिए ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बी ट्री ऑफ ऑर्डर n इज आल्सो कॉल्ड n-n-, हमें इसको बोलना चाहिए n-n-1 ट्री। अगर हम बोलें कि ऑर्डर n = 5 का बी ट्री है, तो इसी बात को हम बोल सकते हैं क्या, n और n-1। यानी तो एक बात ये हो गई कि ऑर्डर n = 5 बी ट्री क्रिएट करना है। इसी बात को हम बोल सकते हैं 5-4 बी ट्री, बोथ आर सेम इक्विवेलेंट। तो इसको हम 5-4 ट्री भी बोल सकते हैं, n = 5 या ऑर्डर 5 ट्री भी बोल सकते हैं, या फिर इसी बात को n-1 और n ट्री भी बोल सकते हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम 4-5 ट्री भी बोल सकते हैं। इससे आप ये समझ जाएंगे कि n की वैल्यू क्या गिवन है, क्योंकि n के अकॉर्डिंग ही आप नोड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट है ईच नोड इन ट्री हैज n-1 की, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर 5 का है तो 4 - 1 की होंगी। और पॉइंटर्स कितने होंगे, n पॉइंटर्स या n सन्स होंगे। जो अभी हमने यहाँ पे बताया था n = 5 है तो 5 पॉइंटर्स होंगे या 5 चिल्ड्रेन होंगे या सन्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और 5 - 1 यानी उससे ऑर्डर से एक कम की वैल्यूज होंगी। 4-5 ट्री इज बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, वाइस वर्सा। फिर है कि ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन ए नोड दैट इज n-1। यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि टेक्स्ट अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में कन्वेंशन अलग अलग है। कन्वेंशन का मतलब कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे है कि ऑर्डर 5 का मतलब 5 कीज हो सकती हैं, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, उससे एक कम की वैल्यूज होंगी, यानी की वैल्यूज मतलब वैल्यूज। तो इस बात को हमने यहाँ कट भी कर रखा है, यानी कि 1-2 रेफरेंस बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि ऑर्डर जितना होगा उतनी ही वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑर्डर जितना होगा उतने पॉइंटर्स या उतने चिल्ड्रेन होंगे। ये बात लेके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ इंसर्शन आर टॉप डाउन, दैट इज कि जो ट्री क्रिएट करेंगे हम वो टॉप डाउन ऑर्डर में होगा। इफ लीफ नॉन फुल, अगर लीफ फुल नहीं है तो लीफ फुल है तो ऊपर से, वो अभी हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। और इसके बाद है कि
थर्ड स्टेप इफ लीफ इज फुल देन स्प्लिट एंड बॉटम अप। यानी इसका मतलब अभी एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब ये है कि अगर आप पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं तो उसी के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी असेंडिंग ऑर्डर में, और लीफ नोड नॉट फुल, क्योंकि वही सिंगल नोड है वही लीफ नोड होगा, तो ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और जैसे ही लीफ फुल हो जाएगा, फुल का मतलब ये है कि ऑर्डर 5 है, तो जैसे ही लीफ के अंदर 4 वैल्यूज हो जाएंगी तो लीफ नोड स्प्लिट हो जाएगा और मिड एलिमेंट रूट बन जाएगा, और लेफ्ट वाले लेफ्ट चिल्ड्रन, राइट वाले राइट चिल्ड्रन। ये एग्जाम्पल में ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ n इज ऑड, यानी कि अगर ऑर्डर ऑड है तो इसका मतलब यह है कि n/2 इन द लेफ्ट एंड n/2 इन द राइट चाइल्ड एंड मिडिल विल बिकम द रूट। ये स्प्लिटिंग का कंडीशन दिया हुआ है कि ये एग्जाम्पल के टाइम पे ही हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दे ही दिया गया है तो यहाँ समझ लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 5 तो मैक्सिमम 4 कीज हो गई। अब अगर हम इस नोड में 8 को इंसर्ट करते हैं तो 8 यहाँ पे आएगा, 7 के बाद 8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 5 7 8 9। ये हमारा टेम्परेरी हमने इंसर्शन यहाँ पे बना लिया, लिख लिया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मिड वैल्यू हमारी 7 है, तो 7 विल बिकम अ रूट, और लेफ्ट साइड वाली जो n/2 वैल्यूज हैं वो लेफ्ट चिल्ड्रन बन जाएंगी और राइट साइड वाली राइट चिल्ड्रन बन जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बी ट्री क्रिएट करेंगे। और अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ट्री क्रिएट करके यहाँ पे हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रिएट बी ट्री फॉर द फॉलोइंग कीज या हम वैल्यूज भी बोल सकते हैं। जैसे वैल्यूज हमारी दिया है 10 5 2 9 11 8 7 15 17, इस तरह से वैल्यूज दी हुई हैं। और भी कुछ वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑर्डर हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5 गिवन है। n इज इक्वल टू 5 6 जो भी ऑर्डर गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे नोड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से, n का मतलब 5 का मतलब 5 पॉइंटर्स, तो ये 2 पॉइंटर्स हो गए, 3 हो गए, 4 पॉइंटर, ये 5 पॉइंटर। ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉइंटर्स हैं जो चिल्ड्रन को पॉइंट करेंगे यहाँ पे। और ऐसा नोड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे वैल्यूज होंगी, वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। अब जैसे मान लिया हमसे इसके लिए बनाना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट 10। अब फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पूरा स्पेस खाली है, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे, यानी यहाँ कहीं भी 4 वैल्यू जाएंगी, 1 2 3 4 वैल्यू जाएंगी। तो अभी हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया हमने 10 यहाँ इंसर्ट कर दिया। इसके बाद अगले स्टेप में बोला जाएगा इंसर्ट 5। जब हमें 5 इंसर्ट करना है तो 5 को इंसर्ट करने के लिए 5 लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि 10 से छोटा है। अभी ये सिंगल नोड है तो यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंटर हो गए, 4 पॉइंटर, 5 पॉइंटर। ये वैल्यूज खाली रहेंगी क्योंकि अभी हैं ही नहीं हमारे पास। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बाकी वैल्यूज को, जैसे 2 को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे 2 इनको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में। तो अगला हमारा जो बनेगा हम इसको लिख देते हैं इंसर्ट 2। दिस इज नॉट पॉइंटर, जस्ट दिस इज shown to represent the steps। 2 5 10 पॉइंटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंटर, ये अभी खाली वैल्यू है। तो इस तरह से 2 5 10 इंसर्ट कर लिया। और इसके बाद 9 इंसर्ट करना है हमें। तो अगले स्टेप में हम इंसर्ट 9 लिखने के बाद ये हमारा हो जाएगा 2 5 9 10।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्री काफ़ी सारी जब हम वैल्यूज़ लेंगे तब जाके ट्री क्रिएशन क्लियर हो पाएगा कि कैसे हम ट्री क्रिएट करते हैं। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम नोड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बार बार ना लेके हम सिंपल ऐसा ले लेते हैं, यानी 2 के बाद हमारा 5 है, नेक्स्ट वैल्यू हमें 9 इंसर्ट करनी है, यहाँ पे 9 इंसर्ट करनी है, 2 5 9 10 ये। तो हम इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पॉइंटर्स हैं जो अंडरस्टूड हैं और उनको हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट 11 इंसर्ट करना है। तो अब क्योंकि ऑर्डर 5 के ट्री में मैक्सिमम 4 वैल्यूज हो सकती हैं, तो 11 इस नोड पे इंसर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि देयर इज नो स्पेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी बॉटम अप अप्रोच यहाँ अब यूज होगी। अभी तक टॉप डाउन मैनर में ये क्रिएट हो रहा था, अब बॉटम अप। तो मिड एलिमेंट विल बिकम द रूट। तो पहले हमें मिड फाइंड करना पड़ेगा। मिड फाइंड करने के लिए हमें इन वैल्यूज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 2 5 9 10 11। तो ये वैल्यू अगर 11 यहाँ इंसर्ट होती तो इस केस में जो मिड एलिमेंट बनता वो हमारा 9 बनता। तो 9 को अब हम रूट पे ले जाएंगे, जैसे हमारा ये हो गया 9। ये सिंगल जो नोड है इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, बट हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। अब 9 के लेफ्ट चिल्ड्रन कौन से हैं, 2 और 5। तो इनको हम 2 और 5 यहाँ लिख लेंगे और 9 के राइट में 10 और 11। तो स्प्लिट होने के बाद हमारा ये ट्री बना। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, अच्छा एक पॉइंट और है जो कि हमने अभी तक नहीं समझा कि इंसर्शन विल ऑलवेज बी इन द लीव नोड। अभी आप देखिए जैसे कि बी ट्री में भी वही होता है, एक्चुअली हम ये बाइनरी सर्च ट्री में भी वही होता है। बाइनरी सर्च ट्री एक्चुअली बी ट्री का स्पेशल केस है, यानी कि अगर हम ऑर्डर n = 2 कर दें तो दैट बी ट्री इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो अभी अब हम इसमें हम इंसर्शन करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बी ट्री में भी। तो अभी तक हमने 9 इंसर्ट कर लिया, 11 इंसर्ट कर लिया, अब हमें 8 इंसर्ट करना है इसमें। तो इसमें हम 8 इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं इंसर्ट 8 इंसर्ट करेंगे। तो अब देखिए 8 इज लेस देन 9, इसका मतलब इट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में अभी देयर इज ए स्पेस, अभी यहाँ पे जगह है, यानी इस नोड के अंदर अभी हम 8 को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे इंसर्ट कर देंगे। अगर ये फुल होगा तो इसका स्प्लिट होगा और मिड वैल्यू इसके रूट में चली जाएगी, वो आगे अभी यहाँ पे हमें दिखेगा। तो 9 हो गया। इसके बाद हम 8 को यहाँ 2 5 8 असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया और इसके बाद इसका हमारा था 10 और 11। तो ये हमारा बी ट्री बन गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, 8 के पास 7 हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सेवन इंसर्ट करना है हमें इसमें। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 7 इज लेस देन दिस, यहाँ पे हमने 5 लिखना था, 2 5 8 ये हो गया। तो 7 इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और इस नोड में आएगा। तो ये हमारा बना 9 के लेफ्ट में आया हमारा 2 5 7 8। ये तब है जब हमने इंसर्ट किया है 7 और इसके राइट साइड में 10 और 11 वैल्यूज आ गई। ये हो गया। इसके बाद अब जो है हमें इंसर्ट करना है 7 के बाद 15 इंसर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे 15 इंसर्ट करेंगे और 15 देखिए यहाँ पे इसके राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि 15 इज लार्जर। सो 9 और जैसे बाइनरी सर्च ट्री में उसी तरह से करना है, बट यहाँ पे नोड के अंदर अगर स्पेस है तो उसी नोड में वैल्यू आएगी 2 5 7 8
और इसके बाद यहाँ पे आएगा 10, 11 और 15। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 17। देखिए नेक्स्ट वैल्यू है 17। तो अभी हमें 17 इंसर्ट करना है। तो 17 इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट 17। 17 इंसर्ट करेंगे तो ट्री हमारा बन जाएगा। वैसे यहाँ पे आएगा बट फिर भी हम इसको नया ड्रॉ कर लेते हैं। 2, 5, 7, 8 और यहाँ पे आया हमारा 10, 11, 15 और 17। नाउ इंसर्ट मोर वैल्यूज, जिससे कि हम नेक्स्ट लेवल का स्प्लिट देख सकें। तो अब हम यहाँ पे 17 या कोई सी भी वैल्यू हम रख सकते हैं। जैसे मान लिया हम 4 इंसर्ट करना चाहते हैं, 4 और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें 4 इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट 4 इंसर्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 9 लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए 4 इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि नोड इज फुल, ऑलरेडी फुल। इसका मतलब इस बार स्प्लिट होना है। स्प्लिट होना है तो 4 इंसर्ट करते हुए इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4, 5, 7, 8, ताकि हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आप देखिए यहाँ पे 5 इज द मिड एलिमेंट। तो अब इस बार स्प्लिट होगा, जब स्प्लिट होगा तो 5 जो है इसके रूट में जाएगा। अब रूट में 9 ऑलरेडी है तो हम 9 के साथ साथ यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5, 9। अब 5 के लेफ्ट साइड में 2 और 4 है, राइट साइड में 7 और 8। तो 5 के लेफ्ट में हम रखेंगे 2 और 4 और राइट साइड में जो जिसके लेफ्ट में था उसके लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में था वो राइट में रहेगा। राइट साइड में हम रखेंगे 7 और 8 और 9 के राइट में आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 10, 11, 15, 17 था, तो उनको एज इट इज हम लिख लेते हैं 10, 11, 15 और 17। ठीक है, अब इसके बाद हम और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। डबल स्प्लिट लेवल तक का हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस एग्जाम्पल को स्टॉप कर देंगे। तो अभी हमें इंसर्ट करना है, मान लिया इंसर्ट 6 इंसर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में वैल्यूज हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अभी जैसा हमें स्ट्रक्चर चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे बना लेते हैं। 6 इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 5, 6 यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 5 से ग्रेटर है, 9 से लेस है, इसका मतलब इस वाले पॉइंटर को फॉलो करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की तरह। तो 5, 9 तो ये रूट हो गया। और पेपर में ड्रॉ करना सिंपल लग रहा है, इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल है अगर बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो ये हमारा 6, 7, 8 आ जाएगा। 6 इंसर्ट होने के बाद 6, 7, 8 और 9 के राइट में था 10, 11, 15 और 17। ठीक है, अब इसके बाद मान लिया हम और इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट 20 इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये नोड स्प्लिट होगा और नोड स्प्लिट होने के बाद क्या बनेगा, 10, 11, 15, 17, 20 को तो यहाँ लिख लिया। 15 विल गो टू द रूट, यानी यहाँ पे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा 5, 9, 15 और 5 के लेफ्ट में 2 और 4 था तो 2 और 4 रहेगा। 5 के राइट में 6, 7, 8 था तो 6, 7, 8 रहेगा। 9 के राइट, अब 9 के राइट में हमारा ये पूरा का पूरा नोड है तो हम इसको 15 के लेफ्ट और राइट देख लेते हैं। 9 का राइट और 15 का लेफ्ट सेम है, तो 15 के लेफ्ट में है हमारा 10 और 11, 10, 11 और 15 के राइट में है 17, 20, 17, 20। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज और इंसर्ट कर लेते हैं, यहीं पे एक साथ ही इंसर्ट कर लेते हैं अभी हम, क्योंकि बार बार डायग्राम ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है। तो हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं 22, 27। पहले 2 वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये बना 5, 9, 15 तो था हमारा यहाँ पे, और ये आया हमारा 2 और 4, 6, 7, 8 यहाँ तक, और 9 के राइट में 10, 11 था, 10, 11 आया, और 15
के राइट में ये आएगा हमारा, दो वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं कॉन्जिक्यूटिवली, तो 17 20 पहले सा था 22 और 27, ये हो गया। अभी डबल स्प्लिट का केस में भी अभी यहाँ पे पहले ये फुल होगा, उसके बाद ये मिड एलिमेंट जो है इसके रूट में जाएगा। तो केस सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम मान लिया यहाँ पे 28 इंसर्ट करते हैं, 28 इंसर्ट करते हैं, तो 28 इंसर्ट करने में ये स्प्लिट होगा और 22 इसके रूट में जाएगा। तो रूट इसका बनेगा 5 9 15 22 और यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 6 7 8 और 9 के राइट में 10 और 11, 10 और 11 हो गया और 15 22 का लेफ्ट, 22 मिड बना ना, तो 17 और हमारा 17 और 20 हो गया और 22 के राइट में हमारा 28 इंसर्ट किया था तो 27 और 28 आ गया। ये ट्री स्ट्रक्चर बना। इसके बाद कुछ वैल्यूज हम और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे कहीं भी कोई सी भी वैल्यू वैसे तो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मान लो हमें इधर राइट साइड में जगह दिख रही है, वैल्यूज भी हमारे पास हैं, यहाँ पे तो वैल्यूज कम बच रही हैं, तो इसलिए हम 30 35 दो वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब हम शॉर्टकट कर सकते हैं, यहाँ पे 30 इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सीधे 30 आ जाएगा, 35 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और इसके बाद जब 37 और मान लिया इंसर्ट करते हैं हम, तो ये जब तीसरी 37 इंसर्ट करेंगे तो ये स्प्लिट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे रफ में इसको बना लें तो 27 28 30 35 37, तो ये 30 विल बिकम द रूट। अब जब रूट में जाएगा तो रूट का जो स्ट्रक्चर बनेगा 5 9 15 22 और ये 30 जो रूट में जाएगा तो ये 30 यहाँ पे आएगा क्योंकि बड़ा है, तो यहाँ पे मिड एलिमेंट हमारा 15 बनेगा। तो अब आप देखिए फाइनल यहाँ पे 15 हमारा ये नोड स्प्लिट हुआ, 15 के लेफ्ट में 5 और 9 है, 15 के राइट में 22 और 30 है, ये हो गया। अब बाकी जो जिसके लेफ्ट राइट में था वो उसको वैसे ही लगा देंगे हम, यानी इसके लेफ्ट में 2, 4 है, 6 7 8 है, 6 7 8 हो गया। अब हमारा 15 के राइट या 22 के लेफ्ट में, 22 के लेफ्ट में हमारा क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 के लेफ्ट में 17 और 20 है, तो ये 17 और 20 हो गया। अब 30 के लेफ्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं 30 के लेफ्ट में 27 और 28 है, 27 28 और 30 के राइट में है 35 एंड 37। तो इस तरह से जो ये हमारी वैल्यूज़ थी, इनपुट वैल्यूज़, यानी कि काफ़ी सारी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी पड़ी। यहाँ पे हम कहाँ तक इंसर्ट कर चुके थे, 6 इंसर्ट हो गया था। अगर हम एग्जाम्पल को कंप्लीट करें, 6 के बाद हमने 20 इंसर्ट किया, 20 के बाद 22 और 27 इंसर्ट किया, 27 के बाद हमने 28 इंसर्ट किया, 28 के बाद हमने 30 35 37, ये वैल्यूज हमें इंसर्ट करके हमें इसका बी ट्री बनाना था। तो ये पूरा एग्जाम्पल था। तो इसके हिसाब से जो हमारा फाइनल बी ट्री बना है वो ये वाला हमारा बी ट्री बना हुआ है। तो ये बी ट्री का क्रिएशन हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ और जो बताने वाली है वो ये है कि अभी तो ऑर्डर क्या था, ऑड था। अगर इवन ऑर्डर हो तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस एक जगह आएगा कि जब हम मिड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा हम उसको भी यहाँ पे करते हैं जरा सा। सपोज दूसरा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। अगर n = 4 है, इसका मतलब कीज कितनी आएंगी, कीज 3 आएंगी किसी भी नोड में और 4 पॉइंटर्स होंगे। 4 पॉइंटर्स
या सन्स या चिल्ड्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। बट अभी आप देखेंगे नोटेशन में कि यहाँ पे फादर, ब्रदर, सन ये बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी n = 4 के लिए अगर आप देखिए कि अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, ये ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट की, और इसके बाद मुझे नई वैल्यू मान लिया 25 इंसर्ट करना है। तो अब होगा क्या, अच्छा 4 है तो 3 की वैल्यू जाएंगी, ये ध्यान रखना है। 4 है तो 10, 20, 30 हमने इंसर्ट कर लिया। इसके बाद 25 इंसर्ट करना है इसमें, तो 10, 20, 25, 30। अब इसमें मिड एलिमेंट फाइंड आउट करना है। डिफरेंस ऑर्डर ऑड और इवन में ये है कि अब यहाँ पे जो मिड एलिमेंट है, यहाँ पे मिड में 2 आ रहे हैं, तो किसी एक को ही हम मिड बनाएंगे। तो इफ वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एज अ मिड, देन इट विल बिकम राइट बायस्ड। यानी कि अगर हम 20 को बनाते हैं तो इसका एक ये बना 20, 10 और राइट साइड में 25 और 30 आ गया, एक तो ये हुआ। और अगर हम 25 को रूट बनाते हैं, मिड एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो 25 विल गो टू द रूट, और इसके लेफ्ट साइड में 10 और 20 आया, राइट साइड में 30 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड में इसका बायसिंग यानी कि इसका झुकाव ज़्यादा है, तो दिस विल बी कॉल्ड लेफ्ट बायस्ड ट्री, एंड दिस इज कॉल्ड राइट बायस्ड ट्री। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो बायसिंग आप एक बार स्प्लिट करने में फॉलो करेंगे, वही बायसिंग पूरे ट्री बनाने के ड्यूरेशन में आपको फॉलो करनी है। यानी बनाएंगे तो पूरा राइट बायस्ड बनेगा या फिर लेफ्ट बायस्ड बनेगा, मिक्स्ड नहीं बनेगा कि कभी लेफ्ट बायस्ड कर दिया कभी राइट बायस्ड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और पॉइंट आप एक दो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि मिनिमम की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। तो n-1/2 अगर 4 है तो 4-1/2 यानी कि 3/2, और ये क्योंकि 4-1 3/2 यानी कि ये 1। तो ये कभी लग रहा होगा कि रूट के अलावा भी यहाँ पे एक वैल्यू है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि रूट के अंदर एक हो सकती है, बट बाकी में जो है क्या होगा, n-1/2 मिनिमम वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अगर ऑर्डर 4 का है तो n-1/2 यानी ये आएंगे। अगर यहीं पे अगर मान लो n = 7 होता, नहीं 6 मान लेते हैं, n = 6 होता, तो मिनिमम की वैल्यूज किसी नोड में कितनी होंगी, ये डिलीशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम। तो 6 - 1/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2, यानी ऑर्डर 6 के केस में मिनिमम वैल्यू जो आएंगी किसी भी नोड में वो आप चेक कर सकेंगे कि 2 आएगी। तो ये तो हुआ क्रिएशन। अब इसके बाद हम डिलीशन यहीं पे समझ सकते हैं। बी ट्री के डिलीशन के लिए हम एक्चुअली इससे भी डिलीट कर सकते हैं जो हमारा ट्री बना था, लेकिन क्या है ना कि केसेज यहाँ पे सिंपल हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पे केस ले लेते हैं। डायग्राम बड़ा के बजाय हम केवल डिलीशन समझना है तो हम डिलीशन पे फोकस करते हैं। तो मान लिया ये कोई बना बनाया हमारे पास ट्री है, इंटरमीडिएट मान सकते हैं या इतना ही मान सकते हैं। इस केस में ऑर्डर हमारा ऐसा है कि मिनिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, और मिनिमम की वैल्यूज अभी हमने डिस्कस किया था n-1/2 होना चाहिए। तो ऑर्डर अगर इसका n = 6 है तो n-1/2 यानी 6 - 1/2 5/2 यानी कि 2 वैल्यूज मिनिमम हो सकती हैं। यानी ऑर्डर 6 का हम इसे मान सकते हैं या ऑर्डर 5 का मान सकते हैं। ऑर्डर 5 का है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमम प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमारा ट्री है n = 5 का है। वैसे दोनों ही केसेज में मिनिमम 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो ये एजम्पशन के साथ, एजम्पशन नहीं बोलेंगे कि ये ऑर्डर गिवन है यानी कि ऑर्डर 5 या 6, फिलहाल यहाँ पे n = 5 का ये ट्री है। इसके बाद हम डिलीशन स्टार्ट करते हैं।
हालांकि डिलीशन हम किसी भी वैल्यू का कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम डिलीट करना चाहते हैं 113। अब 113 को डिलीट करने के लिए 113 को डिलीट करने के लिए हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। क्यों अंडरफ्लो? क्योंकि मिनिमम 2 वैल्यूज नॉन रूट नोड में मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि n-1/2 मिनिमम वैल्यूज मेंटेन होनी चाहिए। अगर उससे बिलो वैल्यूज जाती हैं, फॉल होती हैं, तो इसका मतलब हाँ अंडरफ्लो हो रहा है। तो उस केस में इस नोड को बारो लेना पड़ेगा। अब बारो किससे ले सकता है? अपने लेफ्ट ब्रदर से बारो ले सकता है, राइट ब्रदर से बारो ले सकता है। एक पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जब बारो होगा लेफ्ट या राइट ब्रदर, यहाँ तो फिलहाल लेफ्ट ब्रदर है ही नहीं, तो लेफ्ट से बारो लेने का मतलब ही नहीं बनता। राइट ब्रदर है, राइट से बारो लेगा। तो कोई ब्रदर दूसरे ब्रदर से जब बारो लेगा तो वो पेरेंट की हेल्प से ही बारो ले सकता है, डायरेक्ट बारो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे पेरेंट की हेल्प से बारो लेने का मतलब ये है कि 126 विल गो टू द पेरेंट नोड, एंड ये जो पेरेंट की वैल्यू 120 है ये इसके चिल्ड्रन इस नोड में आ जाएगी। तो अगले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 126 को हमने पेरेंट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे 126 पेरेंट में गया और ये 120 यहाँ आ गया, और 113 को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो हमारा नया ये ट्री बन गया। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डिलीशन, दिस इज द सिंपल वन। नाउ केस 2, डिलीशन का केस 2 है। अभी यहाँ पे क्या था कि कोई एक ब्रदर पिछले केस में बारो दे सकता था, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या है कि मान लिया हम इस ट्री से 120 को डिलीट करना चाहते हैं। अब ये देखेगा क्योंकि यहाँ पे अंडरफ्लो हो रहा है। इससे पहला भी केस 0 भी है। 0 केस में ये है कि सिंपली डिलीट कर दें। अगर मान लिया कि यहाँ पे हमें ये वाले में से 142 डिलीट करना हो तो हम 142 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि मिनिमम मेंटेन हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज मेंटेन हो रही है, तो ये केस 0 मान सकते हैं, यानी वो सिंपल डिलीशन। केस फर्स्ट ये हो गया। केस सेकेंड में अब हमें यहाँ से डिलीट करना है 120 डिलीट करने के लिए इट विल लुक फॉर बारो फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट ब्रदर। तो ये देखा कि लेफ्ट ब्रदर बारो दे सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर ये बारो देगा तो ये खुद अंडरफ्लो हो जाएगा, तो राइट ब्रदर से पूछेगा। राइट ब्रदर के पास भी मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ही मेंटेन है, तो इसका मतलब राइट ब्रदर भी बारो नहीं दे सकता है। तो अब ये क्या करेंगे, ये किसी एक ब्रदर के साथ कंसोलिडेट हो जाएगा, लेफ्ट या राइट ब्रदर के साथ, और कंसोलिडेशन भी जो होगा वो पेरेंट की हेल्प से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको राइट के साथ कंसोलिडेट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 122 को तो करिए डिलीट, इसके बाद 90, 126, 135, 142 ये सब मिल जाएंगे, यानी ये राइट वाले के साथ मिल जाएगा, बट पेरेंट को इंक्लूड करते हुए, यानी पेरेंट की हेल्प से ये इसका कंसोलिडेशन होगा। आप देखिए बारो भी पेरेंट की हेल्प से होगा और कंसोलिडेशन भी पेरेंट की हेल्प से ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 126 चाइल्ड में आ गया, तो 90, 126, 135, 142 ये केस अब सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखेंगे। तो ये नेक्स्ट केस हमारा, हम इसको नाम डाल देते हैं केस 3। केस 0 भी था है जिसमें सिंपल डिलीशन था, तो ये केस 3 है। अब केस 3 में देखिए क्या है कि ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर है, ट्री है, यहाँ से हमें 65 डिलीट करना है, 65 नोड ये वाला डिलीट करना है। अब आप देख सकते हैं कि 65 को अगर हम डायरेक्ट डिलीट करते हैं तो यहाँ अंडरफ्लो हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, तो इट विल लुक फॉर बारो। लेफ्ट ब्रदर है नहीं तो राइट ब्रदर को देखेगा। राइट ब्रदर खुद ही मिनिमम पे चल रहा है, यानी कि उस पे भी अगर हम एक भी नोड डिलीट करते हैं तो ये खुद अंडरफ्लो में चला जाएगा, और अंडरफ्लो कैन नॉट अकर। तो अब ये क्या करेगा, पेरेंट की हेल्प से कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि
65 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो 72, 80, 87, 96 मिल के एक नोड बनना चाहिए था। लेकिन अगर हम 80 को यहाँ से हटा के कंसोलिडेशन में यूज करते हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो रूट है यानी इनका जो पेरेंट है वो खुद अंडरफ्लो हो रहा है। तो यानी कि डिलीशन फ्रॉम 65, इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिलीशन फ्रॉम इट्स पेरेंट, डिलीशन ऑफ 80 फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो अब 80 को यहाँ से डिलीट करना है क्योंकि ये कंसोलिडेशन में जाएगा। तो 80 को डिलीट करने के लिए फिर ये वाला नोड इससे बारो लेने की कोशिश करेगा, इसके पास नहीं है। राइट वाले से बारो लेने की कोशिश करेगा, राइट वाले के पास एलिमेंट हैं इनफ, तो ये यहाँ से पेरेंट की हेल्प से लेगा। तो 120, 80 ये तो ऊपर चला जाएगा, 170 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 150 और 170 आ जाएगा और 80 नीचे आके इन सब के साथ कंसोलिडेट कर देगा 65 को डिलीट करने के बाद। एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो नोड था 180 ऊपर गया, 170 नीचे आ गया, यानी 150, 170 तो हमारे इस नोड में बन गए। 80 को डिलीट करना है, ये बन गया, और इसके बाद ये कंसोलिडेट करना है। तो 65 तो डिलीट हो रहा था, तो 72, 80, 87, 93, 72, 80, 87, 96 ये हमारे यहाँ बन गए। और बाकी के नोड जो जिसका लेफ्ट राइट था वो उसका लेफ्ट राइट बना रहेगा। तो ये हमारा अगला केस हो गया डिलीशन का। इसके बाद हमारे पास आता है केस 4। केस 4 में क्या है, डबल कंसोलिडेशन है। वही सिंपल तरीका, जैसे मान लिया हमें इस नोड से 173 डिलीट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट के पास नहीं है, लेफ्ट राइट के पास नहीं है तो ये क्या करेगा, ये राइट तो है नहीं, यही वाला है, तो इसके पास है नहीं, तो ये वाला राइट ब्रदर नहीं है, इसका इमीडिएट जो होगा वही राइट लेफ्ट ब्रदर होगा। तो ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन में इसके पास वैल्यू नहीं है, नहीं है मतलब क्योंकि अंडरफ्लो हो जाएगा। तो ये 172 को तो थोड़ी देर मान लीजिए कि कंसोलिडेशन में यूज हो जाएगा। 172 को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट करना है, ये अपने ब्रदर से बारो लेने की कोशिश करेगा, इनके पास नहीं है, तो ये किसी एक ब्रदर के साथ क्या होगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। तो इसको डबल कंसोलिडेशन, यानी चिल्ड्रेन कंसोलिडेट हो रहे हैं पेरेंट की हेल्प से, और इनका ये पेरेंट जो है अपने ब्रदर की हेल्प से भी कंसोलिडेट होगा किसी एक की तरफ से, या तो इससे या इससे, और वो भी होगा इसकी हेल्प से। तो ये इसका फाइनल बन जाएगा 60, 300। सिमिलर तरीके से समझ सकते हैं। और ये एक कंसोलिडेशन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अभी तक हमने इसका इंसर्शन यानी बी ट्री का क्रिएशन और डिलीशन दोनों ही समझ लिया है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रिविजिट कर लेते हैं एक बार। बी ट्री टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो बी ट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ओनली हाइट ग्रोज ड्यूरिंग इंसर्शन। मैक्सिमम हाइट जो होगी दैट विल बी लेस देन लॉग ऑफ बेस आर। आर इज द डिग्री, n+1/2, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो R इज द मिनिमम डिग्री, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट, T इज मिनिमम डिग्री मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मिन डिग्री कई बार क्या होता है, बी ट्री बनाने के लिए मिन डिग्री दिया होता है, तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गिवन है। दैट ए नोड कैन हैव एक्सेप्ट रूट इज आल्सो। देयर आर सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू बी ट्री. First is that its height can never go beyond n+1/2 log base r, where r is called mean degree. This is new terminology of mean degree. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि mean degree क्या है। हमने अभी बी ट्री जो ड्रॉ किया that was according to the order. Order was given and then we draw the बी ट्री. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में mean degree given होगा और फिर आपको बी ट्री ड्रॉ करना होगा। तो हमें यहाँ पे ये समझना है मीन डिग्री क्या है और ऑर्डर और मीन डिग्री में रिलेशनशिप क्या है। तो एक चीज और है कि दिस मीन डिग्री इज आल्सो कॉल्ड मिनिमाइजेशन फैक्टर। तो इस पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है, टी इज मीन डिग्री
अगर t मीन डिग्री है देन एवरी नॉन रूट नोड विल हैव एट लीस्ट t माइनस 1 कीज. मीन डिग्री के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज और कीज कैन बी t माइनस 1 इन एनी नॉन रूट नोड. रूट नोड में हमने देखा था कि 1 की वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम 2t माइनस 1 कीज होंगी. अब देखिए ऑर्डर अगर n गिवन होता है देन वी डिस्कस दैट मैक्सिमम वैल्यू एनी नॉन रूट नोड कैन हैव n माइनस 1. सेम चीज यहाँ भी दिया हुआ है, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 2t माइनस 1. तो माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n बिकेम इक्वल टू 2t. तो n इज वी कैन से डबल ऑफ 2t और डबल ऑफ मीन डिग्री. तो अगर मीन डिग्री दिया है तो सबसे पहले आप मीन डिग्री से ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे डबल करके, और ऑर्डर निकलने के बाद यू कैन ड्रॉ द बी ट्री एज वी डिस्कस्ड. तो ये n और मीन डिग्री में रिलेशनशिप हो गया. और देन नाउ हियर बी ट्री इज completed and I hope you can draw the B tree for any set of given values. That's all. Thank you.